understand accordingly. Whereas tacit information is one person's, he or she has it in his own mind. That is, it is situational, or the person has learned over time, so that it remains with the person, herself or himself, and you will only see when the situation arises. Supposedly, you are in a classroom and there is a teacher coming. You automatically stand up, and that you wish her and you sit down. In that situation, and you start after some time when the teacher start teaching you, you sit down and listen to her. Okay, so these are some chain movements or the knowledge interaction, and she starts teaching and you automatically are at the receiving end. So that means that information of how to behave in a class is embedded to you. Supposedly a patient with cardiac arrest came, and you have a prior knowledge of how to use a crash cart, and as a professional nurse, you give do all the methodological procedures for him. So that information which you had learned from your past experience, you have used that practice. You were able to demonstrate it on time. So it was in your mind. So that is, it can't be disturbed, it can't be taken out, and it varies from person to person, and depth varies. So that is tacit knowledge and explicit knowledge. Is it clear to you? Is it clear? Yes, ma'am. Any response? Okay. Okay, let's, as I said, so difference, it is documented and unwritten. Expertise is task and procedures, whereas tacit is knowledge and memory based. In explicit knowledge, you will have policies and manuals, and it is easy to record. And here, it is on the brain, so it is difficult to retain. Now coming to the next slide. What is, now we have learned what is knowledge. Now what is knowledge management? It is a discipline that promotes integrated approach to capturing, evaluating, retrieving and sharing all the enterprise or organization's informations and assets. Now there is not only one form of data, there are many, multiple. You are in a hospital setup, there could be laboratory data, uh, uh, then radiology department data, then IPD data and OPD data. And that data is being captured through different areas, and it is processed in a way, it is stored in a way where it can be easily retrieved. And if a radiologist want to see in which patient the doctors are treating which patient in which OPD, he can see in his hospital management system where the patient is and who is treating him. Similarly, a patient or a nurse, when sends investigations to the lab, she is able to see the lab reports when clicking the ID of the patient, as well as sharing it with the patient and the doctors. So here knowledge management is very important in any organization for dealing and sharing informations at to various stakeholders. Now, for knowledge management, as I said, there are tools, powerful tools that are used to capture, organize, and collectively give greater productivity and help in decision making. So, if you've shared the lab reports which are generated by lab to doctor, and his interpretation of lab reports comes something which is at the danger level, that will hint you to change the course of treatment for that patient or according to his diagnosis or make new diagnosis. So here the information will give you more explicit idea, and that the health professionals and policy makers can make very good decisions, and it can be evidence based. So nothing is guesswork here. When you have data, it is presented in the form of information. There is no room for guesswork. It becomes an evidence based. So knowledge management has a feature that it will be evidence based decisions you will make. It will empower the health professionals. It will help in coordinations with the people in the healthcare sector. Is it clear?
Is it clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is English only a language I should continue, or Hindi, English, both you want? Please tell me. Both. Okay. So basically अभी तक आपने जो देखा है कि नॉलेज का मतलब और उसका रिट्रीव मतलब नॉलेज को रखना, उसको इकट्ठा करना, रखना, उसको फिर से इस्तेमाल में लेना और उसको दूसरों के साथ बांटना, ये एक नॉलेज मैनेजमेंट का फीचर है। इसको नॉलेज मैनेजमेंट कहते हैं। और अगर कुछ टूल्स यानी कि जैसे आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप पीपीटी स्लाइड यानी कि पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन खोलते हैं, उसी तरीके से वो एक टूल है जो आपको स्लाइड्स बनाने में हेल्प करता है। उसी तरीके से नॉलेज मैनेजमेंट टूल्स होते हैं या सिस्टम्स होते हैं विच हेल्प यू इन डूइंग नॉलेज मैनेजमेंट ओके इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो अब फीचर्स देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स? एज आई सेड, नॉलेज क्रिएशंस यानी कि आप सेट पैरामीटर्स लेते हो, ऐसा नहीं कि रैंडम अनइम्पोर्टेंट डेटा। सपोजिटली you want to collect the data of the patients, you will take the name, age, sex, address, his marital status, his previous history, and present conditions he has come with, so that you will use. Will you take a date or his lifestyles you will take? Will you take a data कि उसने 10 साल पहले कौन से रेस्टोरेंट में क्या खाना खाया था, या उसके 5 साल पहले उसको क्या उसने कौन से जॉब किया था? No, that is not relevant. So means main important data needs to be taken which is for knowledge creation required. Then उसको capture करना है. Capturing means acquisition, acquire करना. उसको acquire कैसे करेंगे? As I said, there are tools. या तो questionnaire बनाएंगे हम, उससे written format में लेंगे, या हम online format में questioning ले सकते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि हॉस्पिटल, अगर आपको पेशेंट का डेटा ओपीडी का चाहिए तो आप ओपीडी के रजिस्टर में से जाके लेंगे या वहां के ऑनलाइन सिस्टम्स में से लेंगे। देन उसको स्टोर करना है डेटा। आप किधर स्टोर करेंगे? आपने पेन आपके कंप्यूटर पे स्टोर करेंगे, आपके हॉस्पिटल में सर्वर है उसमें स्टोर करेंगे, आप पर्सनल यूज के लिए यूज करना चाहते हैं अपने रिसर्च के लिए तो किधर? आपके क्लासरूम में स्टोर करेंगे। शेयर किससे करेंगे वो डेटा? आपने एनालाइज किया कि हाँ इस एरिया में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, आपको टीचर के साथ शेयर करना है, आपके लेक्चरर के साथ शेयर करना है, आपको आपके सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ शेयर करना है, आपके डॉक्टर्स के साथ करना है, किसको के साथ शेयर करना है। एंड देन वो नॉलेज शेयर करने के बाद उसका एप्लीकेशन आपने किया कि नहीं, दैट इज दैट नॉलेज, दैट इंफॉर्मेशन दैट यू गेट, उसके अकॉर्डिंग आपने उसका इंटरवेंशंस किया कि नहीं। ओके, नाउ मैं आपको आई एम गोइंग टू टीच यू 3 important बेसिक। अभी मैंने बोला नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, दे हैव, अगर हम अब नॉलेज को डॉक्यूमेंट करना है, डॉक्यूमेंट इस तरीके से करना है दैट एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड, बट वी आर फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एरियाज, बट हेल्थ केयर में it has to be standardized because everything has to be understood and interpreted by others. So whatever we need to do, it has to be standardized amongst all, right? जैसे हमारा CBSE बोर्ड स्टैंडर्ड है, इट इज क्लियर कि ओके ये बुक्स होंगे, ये कॉन्टेक्ट होगा, ये टेक्स्ट होंगे, ये सब्जेक्ट्स होंगे। एंड अगर कोई भी स्कूल इस CBSE करिकुलम लेता है तो हम उस वैसा ही पैटर्न फॉलो करेंगे स्टडी का। उसी तरीके से नॉलेज मैनेजमेंट में 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, ऑन्टोलॉजी, टैक्सोनॉमी एंड मेटा डेटा। सो ऑन्टोलॉजी क्या होता है? ऑन्टोलॉजी बेसिकली नॉलेज डोमेन में एक तरीके का मशीन रीडेबल रिप्रेजेंटेटिव डेटा होता है जिसका एक रिलेशनशिप्स होते हैं। आई रिपीट, ये डोमेन स्पेसिफिक होता है, यानी कि अगर मैं BSc ऑनर्स नर्सिंग स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर बोल रही हूँ तो दिस इज फर्स्ट ईयर डोमेन। फर्स्ट ईयर डोमेन में लॉजिक और उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से
क्लास में कितने बच्चे हैं, and so on. So एक example से बता रही हूँ that ontology is provide a formal data which has key concepts and it has relationship with its subcategories. Now logical होता है, that means it follows a pattern, and reasoning होती है and it gives us insights, और ये help करता है हमें interoperability का मतलब होता है यानी कि आप एक जगह से या दूसरे जगह पर या एक तरह से दूसरे तरीके पे उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने लैब वैल्यूज अपने लैब मॉड्यूल में लिखे हैं, उसका वैल्यू सिस्टम होगा, उसका नॉर्मल वैल्यू होगा, उसका कुछ कोडिंग लैंग्वेज होगा, लेकिन जब आपके पास प्रिंट आउट आता है लैब रिपोर्ट्स का, यू आर एबल टू इंटरप्रेट इन योर ओन अंडरस्टैंडिंग कि ओके अगर वो वैल्यू लेस देन एंड मोर देन है तो यू कैन मेक आउट ओके ये डेंजर लेवल पे आ गया है। सो इसका मतलब है एक स्टैंडर्ड्स या उसको फैसिलिटेट करता है शेयरिंग को, कि ताकि सब लोग उसे समझ पाए और उसको बार बार यूज भी किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ ऑन्टोलॉजी का मतलब। फॉर एग्जाम्पल आपको पिज्जा का वैरायटी है, ओके पिज्जा है, तो पिज्जा किस डोमेन में आता है? पिज्जा आता है फूड में। फूड में पिज्जा किस तरीके का है? नेम्ड पिज्जा, वेजिटेरियन पिज्जा, नॉन वेज पिज्जा, स्पाइसी पिज्जा, और उस नेम्ड पिज्जा में कितने अलग तरीके के नाम हैं। सो आपने एक ही डेटा को कैटेगराइज कर दिया, उसको सब डिवाइड कर दिया और अंडरस्टैंडेबल हो गया सबके लिए। सो आई होप आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में या किसी आउटलेट में जाते हो, ऑब्वियसली दे गिव यू विद वैरायटी। समोसा है तो समोसा कौन से टाइप का है, कॉर्न समोसा है या पनीर समोसा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ऑन्टोलॉजी में भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है। सो दिस branch in which you divide your or you put your information in a format that is understandable, उसके जो varieties and types भी है that is also understandable by others. Is it clear? Can I move on? Okay, next coming to taxonomies. टैक्सोनॉमीज में एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर चलता है। एज यू नो हायरार्की मतलब वन आफ्टर द अदर, यानी कि बॉटम में कुछ होगा, उसके बाद मिडिल एंड में कुछ होगा एंड टॉप में कुछ होगा। वो स्टैंडर्डाइज है, यानी कि उसका फॉर्मेट अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था डेटा, देन इंफॉर्मेशन, नॉलेज, राइट। वो एक तरीके की टैक्सोनॉमी है। That is, it is in a hierarchical form and border categories होती है and they help in classification, consistency रहती है and they can be used across organization. इससे क्या होता है, सर्च करने में आसान हो जाता है कि हम किस लेवल पे क्या बात कर रहे हैं। एंड नॉलेज स्केलेबिलिटी भी है, यानी कि कैटेगराइज करने से हम ये देख सकते हैं ओके दैट इंफॉर्मेशन इज एट दैट लेवल, इट हैज टू बी brought out and we have to go in depth more. So scalable भी है। So for example this Bloom's taxonomy है, आप अपने फ्यूचर सब्जेक्ट में इसको पढ़ोगे एडमिनिस्ट्रेशन में। दैट इज फर्स्ट, कुछ भी चीज है आपको पहले रिमेम्बर करनी पड़ती है, फिर आप उसे अंडरस्टैंड करते हो, फिर उसको अप्लाई करते हो, एनालाइज करते हो, उसको इवैल्यूएट जज करते हो कि हाँ ये ठीक है कि नहीं, फिर उसको अपने काम में जैसे आप यूज करना चाहते हो। सो दिस इज अ टैक्सोनॉमी फॉर्मेट। एम आई क्लियर? ओके, सो इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट आई एम टीचिंग यू राइट नाउ इज डेटा या इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, सो ये हमने पहले देखा था ऑन्टोलॉजीज, जहां पे उसके सब कैटेगरीज क्लासिफिकेशन हम कर सकते थे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हमने देखा कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर में आ गया, वन आफ्टर द अदर, एंड बॉटम लेवल से शुरू होता है फिर टॉप लेवल पे जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा, हम देखेंगे मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब होता है डिटेलिंग,
Okay, simple term detailing. That means it can be descriptive. डेटा में उसके छोटा छोटा पॉइंट्स भी देख सकते हैं हम उसको, स्ट्रक्चर वाइज भी देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज भी देख सकते हैं. इसका एक एग्जांपल मैं बताती हूँ. ये मान लीजिए आप किसी एल्बम को, गाने को सुन रहे हैं. दैट इज उसका कौन सा सॉन्ग टाइटल है, उसके आर्टिस्ट का नेम क्या है, उसका एल्बम का नाम क्या है, उसका रॉक है या क्लासिकल म्यूजिक है, कौन से ईयर में रिलीज हुआ, ट्रैक नंबर क्या था, उसको कंपोज किसने किया, उसको कॉपीराइट किसने किया. सो दिस इज द हायरार्किकल, यानी कि एक शॉर्ट टेबल पे आपको उसके अंदर का कॉन्टेक्स्ट इन डिटेल इन डेप्थ पता लगता है. ओके, सो दिस इज मेटा डेटा. गॉट इट? नाउ बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर, so basically as repeated, can leverage the organization can use ontologies to create shared understanding of the knowledge. Taxonomy helps in hierarchical manner, improving search, retrieval, consistency. Metadata enrichment के काम आता है. That is जो knowledge asset है उसको filter down करने में, कि उसका छोटा से छोटा डिटेल भी हमें मिल जाए. ओके, सो दिस इज अबाउट दीज 3 पिलर्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट. नाउ नॉलेज मैनेजमेंट से हमें क्या मिलता है? वी गेट एक्सेस टू मेडिकल नॉलेज, कोलैबोरेटिव नॉलेज अपॉर्चुनिटीज, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. नाउ व्हाट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम? और इंटेलिजेंट नॉलेज है तो इससे क्या होगा, आप क्या यूज कर सकते हैं seamlessly to capture information about that organization, personalize that information. That is, आप उसको कैसे टेलर मेड कर सकते हो अपने आप. सपोजिटली आपको पेशेंट का, आप नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो, वो डेटा एक कंसाइज फॉर्मेट में लिखते हो, अपने नर्सिंग डायग्नोसिस उसके ऊपर बेस करते हो, और उसके बाद उस पेशेंट के लिए उस नर्सिंग डायग्नोसिस जो आपने असेसमेंट किया है उस बेसिस पे उसको ट्रीटमेंट देते हो. सो पर्सनलाइज्ड वे में आप उसको केयर भी दे सकते हो यूजिंग द नॉलेज. अडेप्टिवली भी आप यूज कर सकते हो उस नॉलेज को. दैट इज, आपको पता लगेगा कि अगर आपका कॉलेज है, कॉलेज में कितने टीचर्स हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, या कौन से क्लासरूम में कहाँ बैठना है. That knowledge will help you to adapt to the structure of the college. So at this, that knowledge also in hospital also, that will help, that the knowledge of the institute will help you to get along and to adapt well to the institute. Now, what is decision support system? हम बोलते हैं, my topic is knowledge management helps in policy and clinical decision support system. Now, what is decision support? अभी तक हमने देखा नॉलेज से विजडम आती है, विजडम से हम लोग कुछ भी डिसीजंस ले सकते हैं, राइट? करेक्ट? सो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आर ट्रांसफॉर्मिंग. सो दिस इंफॉर्मेशन आएगी तो वी विल गेट नॉलेज, and that knowledge we will use for making decisions, providing healthcare with real-time evidence-based guidance to enhance patient care. Now we are using a lot of technologies these days for making these informed decisions and improving patients' outcome. Now, इसमें diagnostics भी है, यानी कि हम medical knowledge use करते हैं patients का diagnosis करने के लिए. आजकल रेडियोलॉजी में मशीन लर्निंग नाम का एक टूल आया है. दैट इज, अगर उस मशीन को बताया जाए कि कैंसर लंग्स में कैसा दिखता है, एंड वी गिव हिम डेटा, लार्ज डेटा, देन वो ऑटोमेटिकली डायग्नोस भी कर सकता है कि क्या उस पेशेंट को, जो आपने जिसका नेक चेस्ट एक्सरे निकाला है, उसको कैंसर है या नहीं. सो डायग्नोस्टिक असिस्टेंस भी कर सकता है. क्लिनिकली एज सच आपको अगर डेटा पेशेंट का गाइडलाइंस दिए गए हैं, ओके, आपको एक प्रोटोकॉल दिया जाता है हैंड वॉशिंग का, सो यू हैव टू फॉलो दैट प्रोटोकॉल फॉर हैंड वॉशिंग. अदर देन दैट, आपको इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट में दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट.
सो अगर आप वो पॉइंट मिस करते हो या एनी ड्रग इंटरैक्शंस के इश्यूज आते हैं, वो सब अगर ऑनलाइन है तो उससे क्या है, आपको रिपीटेड हिंट्स मिलते रहते हैं. देर इज ट्रैकिंग. अब लैब में से या ड्रग्स देते हैं, जब आपका हॉस्पिटल में क्या बारकोडिंग सिस्टम यूज करते हैं मेडिसिन देने के लिए? यस और नो? देते हैं. सो आपको बारकोडिंग सिस्टम ड्रग्स देने के लिए क्यों बोलते हैं? व्हाई? बिकॉज उससे चांसेस ऑफ एरर कम हो सकता है. अगर मान लीजिए आप पेशेंट के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि पेशेंट को इस ड्रग से एलर्जी है, तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं उस पेशेंट को फ्यूचर में या अपने ड्यूरिंग योर स्टे उस ड्रग देने से विच पेशेंट हैज एलर्जी टू. सो ड्रग इंटरैक्शन से वो बचाने में हेल्प कर सकता है, डायग्नोसिस असिस्टेंट में हेल्प कर सकता है. इमेजिंग इंटरप्रिटेशन, जैसे मैंने बताया कि रेडियोलॉजिस्ट आजकल हाई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं टू मेक डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट्स. एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज भी नॉलेज मैनेजमेंट से आता है. मान लीजिए आपके हॉस्पिटल डेटा से आपको पता लगता है कि कोविड टाइम में ले लीजिए, डेटा मेंटेनेंस कितना इंपॉर्टेंट था कि कितने लोगों को कोविड में पॉजिटिव हुए, कितने लोग नेगेटिव थे. फिर उसके बेसिस पे पॉलिसीज बनाई गई, कौन वैक्सीन के लिए विच वैक्सीन इज मोर. आज की डेट में कोविशील्ड इज कमिंग अप विद लॉट ऑफ, आपने न्यूज में देखा ही होगा, इट इज कमिंग अप विद देयर आर लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स व्हिच आर रिपोर्टेड. सो उसका डॉक्यूमेंटेशन रहा होगा कि जितने पेशेंट्स थे उनमें से इतने लोगों को कोविशील्ड दिया गया था, एंड देयर blood clotting and thereby hemorrhages, strokes are common in that patients. So evidence based policy making and that can evaluate कि वो प्रोसीजर या जो प्रोग्राम रन किया गया था was it effective or not, and what is the best practice we can take out. Okay, and अगर ऐसे लोगों को, so this information can help जिन लोगों को कोविशील्ड दिया था, those people can be tracked थ्रू ऑनलाइन. क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों ने, सबको याद है, हम लोगों ने एक आरोग्य सेतु ऐप यूज किया था. सो द गवर्नमेंट हैज दैट डेटा, राइट? सो दीज पेशेंट्स कैन बी ट्रैक बैक एंड देयर द ऑल्टरेशंस और स्क्रीनिंग्स कैन बी डन फॉर द पेशेंट. सो नॉलेज, मैं आपको सिंपल ढंग से सिंपल, आई हैव जस्ट गिवन यू एन एग्जांपल हाउ पॉलिसी बेस्ड डिसीजंस कैन आल्सो बी टेकन यूजिंग नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स. And then experts and stakeholders go in a hospital. It is very important for administration to take, as a nurse also, आप ANS है, you need to know कि आप ICU के ANS है. नर्सेस का रेशियो 1:1, 1 patient to 1 nurse to 1 patient रहता है. So अगर आपके पास 5 patients है in an ICU, so you will the ANS has to maintain कि 5 nurses in the morning है, evening भी है, नाइट में एटलीस्ट 3 नर्सेज है, सो दैट दे कैन मैनेज बिटवीन देमसेल्व्स एंड केयर ऑफ सफर ना हो. सो नॉलेज डिसीजन मेकिंग में बहुत जरूरी होता है नॉलेज मैनेजमेंट का. फिर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, एज आई सेड, मैंने कोविशील्ड का या एग्जाम्पल दिया, that policy outcomes, knowledge management and refining policies and taking new decisions and strategies, that is also important. That is also an important feature. Now, अभी तक हमने ये देखा कि what is the basically knowledge management, कौन सा उसके types थे, what is knowledge के types क्या थे, and उसका management था, management tools थे, pillars थे, and वो policy decision में कैसे हेल्प कर रहा है, एंड क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में भी कैसे हेल्प कर रहा है. कैन यू से समथिंग? आप जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, नाउ बेस्ड ऑन द प्रेजेंट हमने जो सीखा, कैन यू गिव सच पॉलिसी डिसीजन एग्जांपल्स फॉर इन योर हॉस्पिटल एज सच? जो क्लिनिकल एरियाज में आप यूज करते हो, डॉक्टर्स यूज करते हैं. योर फर्स्ट, आपका क्लिनिकल एक्सपोजर होना शुरू हुआ है? आर यू गोइंग टू हॉस्पिटल?
Yes, you're not that audible. हेलो, आप लोग क्लिनिक्स में जाना शुरू किया है, हॉस्पिटल सेटिंग्स में जाना शुरू किया आप लोगों ने? ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ क्लिनिकल डिसीजन यू कैन सी दैट? क्या क्या डॉक्टर्स या नर्सेस क्या डिसीजंस लेते हैं बताइए? मेडिसिन देने का डिसीजन? हेलो, कैन यू बी मोर लाउडर? हेलो, ओके सर, कैन यू इंटरप्रेट? ओके, सो बेसिकली सो एज नर्सिंग में भी आप जब आप अपना हॉस्पिटल्स में जाते हैं, यू मेक योर, आप पेशेंट के एनवायरनमेंट में होते हो, ओके, सो यू हैव टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट, you get the information about the ward, you get the information about which doctor is treating him, you get the information कि उसका केयर प्लान क्या है, अकॉर्डिंगली उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, उसका डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग उसको टैबलेट्स देते हैं, उसका केयर प्लान बनाते हैं, उसको ट्रीटमेंट इंटरवेंशंस देते हैं, राइट? सो ये एक तरीके का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो आप करते हैं, ओके? नाउ कमिंग टू दी टर्मिनोलॉजीज, ओके? अभी मैंने आपको समझाया कि था कि हमारे हॉस्पिटल सेटअप में वी नीड टू कम्युनिकेट डेटा, ओके? लेकिन वो डेटा कम्युनिकेट करने के लिए कुछ लैंग्वेजेस होती हैं दैट आर यूज्ड सो दैट हम उस डेटा को अंडरस्टैंडेबल तरीके से समझा पाए दूसरों को, ओके? सो वन ऑफ दैट स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर व्हिच इज यूज्ड इज ICD-10, दैट इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। अब इसका 10th क्यों? बिकॉज इट इज द 10th वर्जन, ठीक है? And it is used for classifying and coding medical diagnosis. I repeat, it is for classifying and coding medical diagnosis. यानी कि डायग्नोसिस को क्लासिफाई करने के लिए, जैसे कि किडनी डिजीज है या हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है या ब्रेन डिजीज है, Was there a technical issue? अब आ रही है? अब आ रही है? Yes, sir. Okay. Now these are used for structural and organizations, that is ICD का जैसे हमने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस के लिए यूज होता है। तो इसमें कैसे ये लोग कोडिंग करते हैं? चैप्टर वाइज करते हैं, ब्लॉक वाइज करते हैं, कैटेगरीज करते हैं, सब कैटेगरीज करते हैं। चैप्टर वाइज में 21 डिस्टिंक्ट चैप्टर्स है
जिसमें ग्रुप्स एंड ब्लॉक्स में दिया गया है, यानी कि बॉडी पार्ट, उसमें से 3 डिजिट कैटेगरी कोड दिया जाता है ब्रॉड डायग्नोसिस के लिए, एंड सब कैटेगरी दिया जाता है, यानी कि इस ब्रॉड डायग्नोसिस से कम में क्या क्या है। तो यानी कि अभी मैं आपको इस एग्जाम्पल से बताऊंगी। कोडिंग कन्वेंशंस होते हैं, कोडिंग हायरार्की होती है, एंड एक्सक्लूड 1, एक्सक्लूड 2 करके कैटेगरीज होती है। ऑफिशियल कोडिंग गाइडलाइंस भी दी जाती हैं। इस तरीके का कोड होता है। पहला एस सेक्शन होता है, बॉडी सिस्टम होता है, रूट ऑपरेशंस, बॉडी पार्ट, अप्रोच, क्वालिफायर। ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है जो डिजीजेस के लिए, मेडिसिन वगैरह के लिए, प्रोसीजर्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल एस जो है ना, आप देख सकते हैं, एस इज फॉर गिवन फॉर इंजरीज, पॉइजनिंग एंड सर्टन अदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सटर्नल कॉजेज रिलेटेड टू सिंगल बॉडी रीजन। यानी कि एस कैटेगरी दिया है सिर्फ इंजरीज को, चाहे वो किसी भी वे से हो सकती है। S86 को दिया है इंजरी ऑफ द मसल, यानी कि 86 आएगा तो वो मसल इंजरी ही होगा। उसके बाद 0 कैटेगरी दिया है, पॉइंट के बाद 0 आया है। 0 का क्या डिमार्केशन है, इंजरीज ऑफ द एक्चुअली टेंडन दिया है। और 0.01 तो क्या है, स्ट्रेन दिया है। और उसके बाद भी लास्ट वन 0.001, लास्ट वाला वन क्या बोल रहा है, स्ट्रेन ऑन द राइट एस्ट्रेलिस टेंडन। और डी जो लास्ट में दिया है, इज सेइंग कि वो सीक्वल है, यानी कि डॉक्यूमेंट एपिसोड इंजरीज एंड अदर कंडीशन विद एक्सटर्नल कॉजेस। ओके, सो एक कोड को, यानी कि अगर आप कोई डिजीज का, अगर किसी को एस्ट्रेलिस राइट टेंडन इंजरी हुआ है और आपने S86.011 कोड दिया है, तो ये डेटा स्टोर, और अगर इसको कोई हॉस्पिटल ने डॉक्यूमेंट किया कि ये ICD-10 है और ये कोड है इसका, बाकी हॉस्पिटल्स में भी अगर किसी को यही इंजरी हुई होगी तो वो यही दिमाग करेंगे। अगर और जब भी डिजीज सर्वेलेंस या मतलब ऑन से पैन इंडिया लेवल या पैन हॉस्पिटल लेवल अगर चेक किया जाएगा कि हमारे हॉस्पिटल्स में, इस एरिया में जितने हॉस्पिटल्स थे, उनमें से इस तरीके की इंजरी किसको हुई और इतने कोड कम से कम 100 बार आ गए, इसका मतलब 100 लोगों को ये इंजरीज हुई हैं। एम आई अंडरस्टैंडेबल? सो ये कोड्स दिए जाते हैं सो दैट जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है वो स्टैंडर्ड रहे सबके लिए। सो कोडिंग प्रिंसिपल्स लाइक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, स्पेसिफिकली उन्हीं पॉइंट को बोला जाता है। 4th या 5th डिजिट जो आपने देखा वो डायग्नोसिस को मोर एक्यूरेटली एंड डिटेल्डली देखता है। कोड सीक्वेंसिंग होते हैं, फिर कोडिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है, ऐसा नहीं है। और आप सोचोगे, मान लीजिए अगर कोई डिजीज किसी ऑर्गन का, जैसे कोड दिया था एस को इंजरीज में, एक और तरीके की इंजरीज ड्यू टू दी, मान लीजिए एक न्यू वेपन, न्यूक्लियर वेपन ने किया, न्यू वेपन इंजरी हुआ, उसकी वजह से न्यू वेपन इन्वेंट हुआ, उससे एक इंजरी हुई। तो क्या ICD में वो न्यू कॉलम्स या न्यू इंजरीज रखने के लिए जगह है? यस। इन्होंने जब भी ICDs का मैपिंग होता है, दे कीप सर्टेन ब्लॉक्स एम्प्टी, यानी कि कुछ ब्लैंक छोड़ देते हैं ताकि और डेटा को एडजस्ट किया जाए फ्यूचर में। ओके, सो यानी कि ICD का मतलब, ICD का कोडिंग बना गया है तो एक बार बना के फिनिश नहीं हुआ है, इट कीप्स ऑन रिवाइजिंग। ओके, as and per the requirement. Now documentation, इससे क्या होता है, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, यानी कि एक सिंपल कोड से आप पूरा पेशेंट का डिटेलिंग हिस्ट्री देख सकते हैं, करेक्ट? उसको क्या इश्यू है वो बहुत डिटेल में देख सकते हैं। तो मेटा एनालिसिस जैसा, मेटा डेटा जैसा हो गया, राइट? उसमें रैशनल लगा सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं, कोड्स वैलिडेट कर सकते हैं, यानी कि दे मीट दैट। कभी कभी ये डेटा, मान लीजिए रीइंबर्समेंट के भी काम आ सकता है। मान लीजिए एक हॉस्पिटल में इतने लोगों को एम्पुटेशन था तो उसका कोड दे दिया,
उस कोड के अकॉर्डिंग इतने लोगों को हम लोगों को प्रोस्थेसिस बनाने हैं। वो प्रोस्थेसिस बनाने के लिए वो डायग्नोसिस कोड को ही नंबर है और वो नंबर के अकॉर्डिंग वो लोग उतने प्रोस्थेसिस के लिए ऑर्डर या ऑर्डर दे सकते हैं या उसके लिए प्रोक्योरमेंट का इशू अरेंजमेंट कर सकते हैं। रीइंबर्समेंट के प्रोसेस में भी, यानी कि अभी तो हम हेल्थ टर्म में बात कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल टर्म वाले फाइनेंशियल लोगों को क्या समझ में आता है? फाइनेंस डेटा समझ में आता है। तो क्या बोलेंगे अगर हेल्थ उनको हम अगर बोले पेशेंट को एक्चुअली टेंडन इंजरी है, वो बोलेंगे ये क्या होता है? अगर वो एक कोड में बता दिया विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द फाइनेंस पीपल आल्सो, बैंकिंग पीपल आल्सो, राइट, और पॉलिसी मेकर्स आल्सो, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में जिनको हेल्थ इंफॉर्मेशन नॉलेज समझ में नहीं आती है उनको, तो उनके लिए वो इजी हो जाता है आसानी से डायग्नोसिस को समझना। एम आई क्लियर? सो ये आईसीडी कोडिंग बहुत जगह यूज हो सकती है, नॉट इवन हॉस्पिटल्स, क्लेमिंग एरियाज, रिइंबर्समेंट एरियाज, बिलिंग एरियाज, उन लोगों को भी। ठीक है, नाउ एक्यूरेट, इसमें हम क्या देख रहे हैं, जब डेटा डिलीवर कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर आउटकम है, उसका एक एपिडेमियोलॉजिकली, हम हवा में उसका डेटा सीक्वेंस नहीं बना रहे। एपिडेमियोलॉजी मतलब होता है, एपिडेमियोलॉजी एक मतलब एक स्टडी है, स्टडी में एक डिजीज के बारे में उसका पॉपुलेशन क्या है, मतलब कितने लोगों को हुआ है, कहाँ हुआ है, उसका सिवियरिटी क्या है, किसने किया है, ये 3-4 पैरामीटर्स देखते हैं। तो एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि मान लो अगर इसमें डेंगू हुआ, डेंगू एडीज इजिप्टाई से हुआ है, मलेरिया हुआ, मलेरिया फैल्सीपेरम से हुआ या प्लाज्मोडियम वाइवाक्स से हुआ, उस क्लासिफिकेशन तक भी हम जा सकते हैं। सो एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे के लिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर ऑडिट्स के लिए भी हेल्पफुल है और लीगल इश्यूज में भी काम आता है। नाउ कोडिंग और कोड बनाए तो इसके चैलेंजेस भी आते हैं, यानी कि अब आपने बना दिया है बट जो इसको यूज कर रहा है उसको ट्रेन करना, और उसमें से जब हम इसको कोड को बनाते हैं इसमें से कौन सा इंक्लूड करना, क्राइटेरिया कौन सा एक्सक्लूड करना, बाद में इसको इवॉल्व भी करना है, तो वो भी चैलेंजेस होते हैं। अच्छा ये न्यू एडिशंस करना है, इसको ये हटाना है। और आप जानते हैं diabetes and hypertension, they are comorbidities and due to which there are lot of organ diseases. hypertension से kidney diseases भी हो सकते हैं, hypertension से heart disease भी हो सकता है, hypertension से strokes भी हो सकते हैं, right? So accurately उसको मैपिंग करना कि आप किस कैटेगरी में आपको सब कैटेगरी दे, वो मुश्किल हो जाता है। That is one of the little drawbacks of the ICDs. लेकिन डॉक्यूमेंटेशन, क्लैरिफिकेशन, एजुकेशन के लिए ICD-10 एक अच्छा टूल है। नाउ ICD-10 की गाइडलाइंस होती है, उसके पॉलिसीज होते हैं, उसको रेगुलर ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग किया जाता है। दे आर यूज्ड फॉर हेल्पिंग मिटिगेटिंग और अंडर पेमेंट्स, लीगल इश्यूज को टैकल करने के लिए, एज आई सेड, यानी कि आज की डेट में डायग्नोसिस कोड्स एनेबल डिटेल्ड रिपोर्टिंग ऑफ द पेशेंट एंड आज तक 100 million quality measures are used to assess as a benchmark in healthcare performance using ICD-10 CM. So that ICD-10 is helpful for so many quality measures. Okay. So आजकल NABH accreditation आपने देखा होगा, NABH accreditations आते हैं, that is अगर क्वालिटी मेजर्स चेक्स में ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सर्वेलेंस में एज आई डिस्क्राइब एपिडेमियोलॉजी में इट enables detailed tracking of the disease pattern, outbreaks, population health, trend, information and public health decision making. And there is a website that is इंडियन सर्वेलेंस का एक वेबसाइट है, इंडियन सर्वेलेंस ऑफ डिजीजेस। ओके, इन दैट ICD-10 और द लेटेस्ट वर्जन इज बीन यूज्ड, जहां पे सारे हॉस्पिटल्स अपना डेटा डेली फॉर्मेट में भरते हैं, जिससे वो
सर्वेलेंस में हेल्प होता है कि पैन इंडिया कितने जगहों पे क्या टाइप की डिजीजेस हो रहे हैं. ओके, इन्फॉर्मिंग और पॉलिसीज मेकिंग में इफेक्टिव है और कम्युनिटी इम्पैक्ट देता है अगर हम यूजिंग दैट डेटा करेक्ट टाइम पे डायग्नोसिस कर लें और इंटरवेंशंस देना शुरू करें. फ्यूचर डेवलपमेंट्स, दैट इज एक्सपर्ट आर डूइंग मोर ग्रैन्युलर मतलब टू द लोएस्ट लेवल, और कितना उसको रिफाइन कर सकते हैं और कितना मेटा डेटा उसमें ले सकते हैं. स्पेशली आजकल मॉलिक्यूलर जेनेटिक डेटा, ग्रेटर इंटीग्रेशन एंड EHR में भी उसको कैसे और यूजफुली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. कैन एनीबडी डज एनीबडी नो व्हाट इज EHR? किसी को आइडिया है व्हाट इज EHR? EHR इज इलेक्ट्रॉनिक. इससे पहले आपकी कोई कंप्यूटर क्लास या नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स क्लास हुआ है? Yes, ma'am. उसमें आपको EHR के बारे में बताया गया है? ओके, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, एवरीथिंग व्हाट वी आर स्टडिंग राइट नाउ, अब ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, करेक्ट? राइट? दिस इलेक्ट्रॉनिक डेटा विल गो इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ओनली, मैनुअल पेपर पे तो नहीं जाएगा, राइट? तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक रखना यानी कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स. ओके, सो इस इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में क्या होता है? एक हॉस्पिटल का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है. ओके, लैब का डेटा आप समझ लो. रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन डेटा होता है, RIS. ठीक है, फिर पेशेंट का डेटा होता है, दैट इज क्लिनिकल नोट्स. ओके, सो डॉक्टर्स, अगर आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर्स क्या कंप्यूटर में एडमिशन डिस्चार्ज करते हैं, डेली नोट्स लिखते हैं पेशेंट्स के? यस और नो? यस ना? Yes, ma'am. सो वो क्लिनिकल रिकॉर्ड है पेशेंट्स का जो वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे रहे हैं हॉस्पिटल को. सो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड. सो ये क्या है? ये अगर ICD-10 EHR में इनकॉर्पोरेट करे तो, और आप लोगों को, नर्सेस को, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग हो इसमें ICD कोडिंग या जो भी कोड आप यूज करते हैं, तो क्या आप पेशेंट का डायग्नोसिस समझने में आप लोगों के कम्युनिकेशन में कोई गैप होगा? नहीं. बेसिकली अगर एक डॉक्टर बोल रहा है हार्ट अटैक, आप बोल रहे हैं MI, इज इट द सेम? यस, लेकिन उसका सिनोनिम है, लेकिन कोड एक है. तो आप लोगों को के बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी, ओके पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, राइट? सो दैट कोडिंग, इससे क्या होगा? कोडिंग प्रोसेस से क्या होता है? ऑटो कोडिंग, रिड्यूसिंग बर्डन ऑन ह्यूमन कोडर. यानी कि मान लीजिए अभी आज की डेट में ICDs कोडिंग हॉस्पिटल्स में होते हैं, लेकिन अगर गलती से गलत बटन 0.011 की जगह 0.012 क्लिक हो गया तो गलत डेटा जा सकता है. सो प्रेजेंटली देयर आर वेज इन विच कि अगर वी ट्रेन द सिस्टम कि उसका ये डायग्नोसिस है, तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट डेटा, करेक्ट कोड उसके लिए उठा ले. सो दैट कैन बी यूज्ड. सो हम फ्यूचर में क्या है, छोटा सा भी डेटा दे तो कंप्यूटर अपने आप ही उसका कोडिंग आराम से कर दे. एंड ये EHR में एनकोडेड हो, EHR में ये सब कुछ फैसिलिटी हो, इससे हमारा कम्युनिकेशन बेटर हो. ठीक है, ये फ्यूचर डेवलपमेंट है. नाउ अभी तक मैंने आपको ICD-10 बताया. ICD-10 में एक ड्रॉबैक मैंने आपको बताया था कि उसमें ब्रांचिंग करना इतना आसान नहीं है. यानी कि हाइपरटेंशन आप हर एक चीज से मैपिंग नहीं कर सकते हो, हार्ट से भी और ब्रेन से भी और किडनी से भी, राइट? कुछ कुछ डिजीजेस या कुछ कुछ साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो प्रोमिनेंटली बहुत सारे डिजीजेस में दिखते हैं. ओके, सो उस कंडीशन में क्या किया जाए? उस कंडीशन में स्नोमेड सिटी विच इज
systematized nomenclature of medicine and clinical terms. Okay, ये यूज होना शुरू हुआ था. Now, this was developed according to International Health Terminology Standards Development Organization, that is IHTSTDO. Okay, अब इसमें क्या है? This is multilingual, यानी कि लोगों को डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये वोकैबुलरी है, क्लिनिकल टर्मिनोलॉजीज है, और ये यानी कि आप कुछ भी डेटा सिंपल अपने लैंग्वेज में दे, आप हिंदी में दे या कोई बंगाली में दे, कोई महाराष्ट्रन में दे या कोई तमिल या तेलुगु में दे, they all will be meaning the same thing in this. Okay, so this is अभी तक 300,000, और इसमें कॉन्सेप्ट बेस है, हायरार्की है, जैसा हमने टैक्सोनॉमी में देखा था, क्लिनिकल टर्मिनोलॉजीज यूज है, और बेसिकली एक्सचेंजिंग ऑफ डेटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी कि आप इसे क्रॉस बॉर्डर, यानी कि इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एनीवेयर यू कैन यूज इट. ओके, विदाउट, और अगर आपने अपने ये चार में इम्प्लीमेंट किया, this will have better implications than ICD. Okay, now let's see its feature. अब जैसे उसमें मैंने components बताए थे, उसी तरह इसमें भी components रहते हैं. That is, उसमें codes थे, S से code था, फिर categories थे, उसका सब points था. इसमें जो main category वो disease based था, इसमें concept based है. Okay, उसको हम स्नोमेड सीटी आइडेंटिफायर बोल रहे हैं. ठीक है, उस कॉन्सेप्ट में सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट में एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं. एट्रीब्यूट्स मतलब उसके सब स्पेशलिटीज. उसमें एक कॉमन यूनिक यानी कि उस कॉन्सेप्ट में एक यूनिक चीज हो सकती है. ओके, और उसका एक मार्क प्रेफर्ड लैंग्वेज भी हो सकता है. थोड़ा और डिटेल से देखें. फॉर एग्जाम्पल, उसी कॉन्सेप्ट को अच्छा डिटेल में बता रही हूँ. सपोजिटली कॉमन कोल्ड डिसऑर्डर है स्नोमेड में, उसको एक कॉन्सेप्ट आईडी नंबर दिया है. ओके, अब ये डेटा, अब कॉमन कोल्ड जो है वो वायरल में भी हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी हो सकता है, वायरसेस की वजह से भी हो सकता है. तो ये रिलेशनशिप्स है. ओके, वायरस की वजह से, सॉरी, वायरस की वजह से कोल्ड हुआ, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जगह था उधर ये कोल्ड हुआ, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे उसमें, यानी कि कोल्ड हुआ तो नोज से रनिंग नोज था, या फिर उस इंटरमिटेंट नोज ब्लॉक था, या कॉमन कोल्ड था, या कोराइजा इज अ terminology which is used for running nose, या acute nasal cathar था. यानी कि एक कॉमन कोल्ड के मेडिकल टर्मिनोलॉजीज भी यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी कि इसके सिनोनिम्स हैं, इसके क्वालिफायर्स है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट को इतनी मैपिंग की हुई है. मान लीजिए इन फ्यूचर इफ इट सेज दैट, टेल मी, somebody has raised hand. Is it clear or should I proceed? Yes, sir. Okay. For this example, some descriptions, यानी कि fully specified name, यानी कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जैसे मैंने बोला, उसका एक डिस्क्रिप्शन आईडी दिया हुआ है. उस डिस्क्रिप्शन आईडी में सिनोनिम्स क्या है? कार्डियक इंफाक्शन भी है, हार्ट अटैक भी है, इंफाक्शन ऑफ हार्ट भी है. आप देख रहे हो फुल्ली स्पेसिफाइड में ये टर्मिनोलॉजी, सिनोनिम्स एंड सिनोनिम्स को भी एक आईडी नंबर दिया हुआ है. गॉट इट? अगर हम स्टार्टिंग में अगर कोई हॉस्पिटल में इंफाक्शन ऑफ हार्ट लिखा जा रहा है तो उसका कोड आईडी ये बन जाएगा स्नोमेड में, और स्नोमेड बोल रहा है कि ये जो इस कॉन्सेप्ट आईडी 89013 से अटैच कर दूंगा. गेटिंग?
सो ये अटैच हो जाएगा इससे। तो अंडरस्टैंडिंग, आप चाहे कोई सी भी लैंग्वेज यहाँ पे सिनोनिम्स यूज कर रहे हो, लेकिन फाइनली वो इस आईडी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ अटैच हो जाएगा। गॉट इट? सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ स्नोमेड सिटी। सो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है, प्रिसाइज है, यूनिक आइडेंटिफायर्स है, इंटरऑपरेबल है, यानी कि डेटा को सीमलेसली एक्सचेंज हो सकते हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, इनहेरिटेंस है, नेविगेशन भी दे रहा है, मतलब सिनोनिम्स भी है या किस पार्ट पे, मतलब उसको हर एक एट्रीब्यूट कैटेगरी में डाल दिया है, जिसकी वजह से उसको ट्रैक डाउन करना बहुत ही आसान है। नाउ कोडिंग एक्यूरेसी स्टैंडर्डाइज है, ग्रैन्युलर है, रिड्यूस्ड एरर्स है इसकी वजह से। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यानी कि इसमें वाइड रेंज ऑफ as and when the we progress more as the time comes, these changes are required. So harmonization, alignment, data exchange, and research. So in conclusion, SNOMED City remain a very crucial component, and it can be very important in population health management because